Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today we came with a topic factor influencing metabolism of a drug. Okay, so like the absorption distribution, the different factor which will be influencing. So similarly here also the different factor which will be influencing on the rate of metabolism of a particular drug. Any drug, its efficacy, toxicity and biological half-life of drug mainly depend upon its metabolic rate. Okay, so the good therapeutic effect are the less toxicity and biological half-life for the frequency of doses will be adjusted based on the metabolic rate. So knowing that the different factors which will be influencing for the metabolism of drug are the mainly the physicochemical properties of the drug, chemical factor, and third one is biological factor, fourth one is a temporal factor. In this class we are planning for to discuss the physicochemical properties of drug and also the chemical factor. So what is this physicochemical properties of the drug? Mainly the drugs are available with a different molecular size and shape and with a different pKa and acidity or alkalinity or lipophilicity or maybe hydrophilicity, steric and electronic characteristic of the drug which influences the interaction with the active sites of enzyme, thereby the process of biotransformation will be increase or decreases. Whenever the drug is with the enzyme interact with each other, so there will be interaction will takes place and directly it will be changes in the बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. सो ये क्लास से हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. जैसे हम ड्रग अंदर लेने के बाद कौन सा फैक्टर, जिस तरह से अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है इस तरह इधर भी दो डिफरेंट फैक्टर विल बी इन्फ्लुएंसिंग ऑन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. Majorly the therapeutic efficacy or the toxicity or the biological half life will be determined with the help of the rate of metabolism. ये क्लास में हम लोग ये जानकारी ले रहे कौन सा फैक्टर विच विल बी मेजरली इन्फ्लुएंसिंग फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड टेम्पोरल फैक्टर आर द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये जो है ना वो मेटाबॉलिज्म रेट के ऊपर इफेक्ट होता है. सो इसलिए आज का क्लास से हम लोग ये जानकारी लेने वाले फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग और केमिकल फैक्टर्स. सो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, जैसे ये ड्रग का प्रॉपर्टी रहता है मॉलिक्यूलर साइज रहने दो, शेप रहने दो, पीकेई रहने दो, एसिडिटी है, अल्कलिनिटी है, लिपोफिलिसिटी है, हाइड्रोफिलिसिटी है, स्टीरिक है, इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर जो भी रहता है ना, वो जो ड्रग इन्फ्लुएंसेस with its interacting with the active enzyme sites of the particular the liver and the rate of biotransformation process will be altered. वो जानकारी हम लोगों को फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी से मालूम होता है. जैसे ये ड्रग और एंजाइम कंबाइंड हो जाता है, सो इंटरेक्शन जो होने के बाद वो बायोट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस आता. ओके, सो ज़्यादा भी एक्टिविटी हो जाता है या कम एक्टिविटी हो जाता है. ज़्यादा हुए तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, कम हुए तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, केमिकल फैक्टर. मेजरली द फर्स्ट वन इज अ मल्टीपल ड्रग थेरेपी. सो मल्टीपल ड्रग थेरेपी मीन्स व्हेन वी गिवन ए मोर देन 2 or 3 drug administered to a patient, what are the probability of the rate of metabolism, whether it is increases or decreases. ओके, सो समझ लीजिए एक प्रिस्क्रिप्शन में ए ड्रग है, बी ड्रग है, ये दोनों एक साथ देने के बाद ए ड्रग बी ड्रग को मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है या ए ड्रग को बी ड्रग को मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करता है. सिमिलरली वाइस वर्सा, बी ड्रग ए ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है या कम हो जाता है. इट विल बी डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर ड्रग और पर्टिकुलर एंजाइम विच इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रहता है. समझ लीजिए ना, जो भी एंजाइम रहता है ना, पर्टिकुलर ड्रग और पर्टिकुलर एंजाइम के ऊपर इंटरेक्शन जैसा रहता है. अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होने के बाद दी एक्टिविटी बढ़ जाता है बोले तो आपका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, अगर कम हुए तो कम हो जाता है. सो नेक्स्ट वन कम्स द इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम. सो इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम, इट इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द इंक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी. मतलब जो एंजाइम ड्रग इंटरेक्ट होता है ना,
वहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ा जाता है। सो जैसे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाता है सो ऑटोमेटिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट रहता है ना ज़्यादा हो जाता है। सो व्हेन ड्रग एंटरिंग इनटू आवर बॉडी द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर drug increases, so that is called as an enzyme induction. So I am repeating, so when drug is increases the metabolism of other drug is called as an enzyme induction. समझ लीजिए ए ड्रग बी ड्रग है, ए ड्रग जो है ना बी ड्रग का एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाता बोले तो उसको बोलते हैं इंडक्शन और इंड्यूसिंग, समझ लीजिए ना। सिमिलरली बी ड्रग अगर ए ड्रग का एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाता है ना सो उसके लिए बोलते हैं इंड्यूसर और इंडक्शन। ओके, सो एग्जांपल आर दी बारब्यूटेरेट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीकोगुलेंट। मतलब ये जो दोनों ड्रग एक साथ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर लिए तो वो क्या हो जाता है बारब्यूटेरेट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीकोगुलेंट। मतलब क्या हो जाता है इंडक्शन इंक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। मतलब क्या हो जाता है जो दोनों देने के बाद जो एंजाइम ज़रूरत है एंटीकोगुलेंट को मेटाबॉलिज्म करने के लिए उसका जो एक्टिविटी बढ़ाता है, इसलिए तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विल बी इंक्रीजेस। So the reason or mechanism behind increases or decreases, the reason is that one is if the liver size is increases so automatically the rate of metabolism increase होता है। अगर blood flow ज़्यादा रहे तो वो भी increase हो जाता है। अगर टोटल माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी अगर बहुत ही बढ़िया रहे तो उससे भी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब समझ लीजिए एंजाइम स्टेबिलिटी ज़्यादा हुए तो क्या हो जाता है रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। अगर सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम 450 ज़्यादा हुए तो क्या हो जाता है रेट ऑफ metabolizing activity will be increases. In the vice versa also, if the size of the liver is reduced, if the blood flow is reduced, if the total and the microsomal enzyme activity will be reduced, so what happen? So the rate of metabolism will be decreases. So majorly the synthesis of cytochrome 450 is very much important for the major drug which come across as the metabolism, and the microsomal enzymes are major important for the phase 1 reaction. So these are the important the induction of the drug metabolizing enzyme. In this metabolizing enzyme, that is an induction of drug metabolizing enzyme, there are two types are there. One is called as a phenobarbital type, another one we called as a polycyclic inducer agents. Coming to the third one, inhibition of drug metabolizing enzyme. ये जो है ना इसका रिवर्स रहता है, मतलब यहाँ पे बढ़ाता है एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाता है। समझ लीजिए यहाँ पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, यहाँ पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है बोल के। सो व्हेन ड्रग इज एंटरिंग इनटू आवर बॉडी डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग इज कॉल्ड एज एन एंजाइम इनहिबिशन। जैसे हम लोग दो ड्रग लेने के बाद एक ड्रग दूसरा ड्रग को बढ़ाए तो हम लोग इंड्यूसर बोलते हैं, एक ड्रग दूसरा ड्रग को अगर उसका एंजाइम एक्टिविटी कम कराए तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। उस तरह से ड्रग जो रहता है ना उसको बोलते हैं इनहिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम। ये क्यों होता है बोले तो पर्टिकुलर ड्रग जो रहता है ना पर्टिकुलर एंजाइम से वो इंटरेक्ट होने के बाद उसका एक्टिविटी जो रहता है ना कम हो जाता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना वो कम हो जाता है, इसलिए ये इनहिबिशन हो जाता है। समझ लीजिए एग्जांपल, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फिनोटाइन, डिक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द फिनोटाइन। मतलब क्या हो जाता है ये दो एक साथ हम लोग दिए तो जो मेटाबॉलिज्म रहता है ना जैसे फिनोटाइन ड्रग का वो एक्टिविटी कम हो जाता है, एंजाइम एक्टिविटी कम होने के बाद रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसलिए इस तरह से ड्रग आप देने से पहले आप बहुत सोच समझ कर देना पड़ता है। इनहिबिशन अकर ड्यू टू दी सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम जो रहता है ना उसका जो कम हो जाने से इनहिबिशन हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन आर देयर, डायरेक्ट इनहिबिशन, इनडायरेक्ट इनहिबिशन। डायरेक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट पर्टिकुलर एंजाइम एंड पर्टिकुलर ड्रग जब इंटरेक्ट होने के बाद उसका एक्टिविटी कम हो जाता है ना उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनहिबिशन। इनडायरेक्ट बोले तो इनडायरेक्टली दूसरों को कम कराए तो वो ऑटोमेटिकली और एक रहता है ना उससे कम हो जाता है।
इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। सो कॉम्पिटेटिव इन डायरेक्ट इनहिबिशन देयर आर टू टाइप्स अगेन, दर कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर रहे तो द रेट ऑफ इनहिबिशन कम हो जाता, मतलब एक्स एंड वाई बोथ आर दी स्ट्रक्चर सेम रहने के बाद वो एंजाइम को कन्फ्यूजन होके उसका एक्टिविटी कम करता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। अगर स्ट्रक्चरल सिमिलर नहीं रहते भी एंजाइम एक्टिविटी कम होता, उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिशन। अब समझ लीजिए इनडायरेक्ट इनहिबिशन में भी दो तरीका है, रिप्रेशन एंड अल्टर्ड फिजियोलॉजी। रिप्रेशन इज नथिंग बट द एंजाइम क्वांटिटी जो ज़रूरत है फॉर द मेटाबॉलिज्म वो कंटेंट कम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रेशन। अगर एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा रहे तो इंड्यूस होता है, एंजाइम एक्टिविटी कम हुए, कंटेंट कम हुए तो इनहिबिशन हो जाता है। उस तरह का जो इनहिबिशन बोलते हैं रिप्रेशन इनडायरेक्ट इनहिबिशन। अब समझ लीजिए अल्टर्ड फिजियोलॉजी, मतलब जो भी न्यूट्रिशन हमारा बॉडी को बहुत ज़रूरी है, अगर वो डेफिशिएंसी आए तो क्या हो जाता, एंजाइम्स प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होता, उससे क्या हो जाता, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़रूरी है अपना बॉडी को अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म सही से होना बोले तो। इसलिए न्यूट्रिशनल एंजाइम्स, न्यूट्रिशनल विटामिन्स मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी है। क्यों बोले तो प्रोटीन जितना रहता है हमारे बॉडी में उतना द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। सो ऑलवेज आई प्रेफर टू सजेस्ट यू दैट यू टेक द गुड न्यूट्रिशनल विटामिन्स मिनरल्स एंड इंक्रीज द प्रोटीन लेवल, सो द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विल बी इंक्रीजेस। सो ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से आपको मालूम हुआ what are the factors influencing on the metabolism of drug and in detail physicochemical properties of drug and also chemical factors. So we'll continue the next part in the next video. Thank you very much for watching this video.